स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द सेकेंड लेसन ऑफ योर NCERT बुक of class 9th. Chapter is polynomials and exercise is what? 2.5. Here we are going to discuss question number 4. Question number 4 is expand each of the following using the suitable identities. First is x plus 2y plus 4z whole square. Second is 2x minus y plus z whole square. Third is minus 2x plus 3y plus 2z whole square. Fourth is 3a minus 7b minus c whole square. Fifth is minus 2x plus 5y minus 3z whole square. And sixth is 1 by 4a minus 1 by 2b plus 1 whole square. ओके, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि 3 टर्म्स के होल स्क्वायर का इवैल्यूएशन करना है. So in the previous video when we discussed the identities, one identity is related to the expansion of the sum of 3 terms. That identity is what? X plus y plus z whole square is equals to what? X square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Okay, so overall there are 6 parts. I will do 3 part for you and then remaining 3 part you have to do as a practice. So look here for the second part. First of all, second part is 2x minus y plus z whole square. In the given identity all the function are in plus. So first of our responsibility is that we have to make all the function as a प्लस. जैसे यहाँ पे y आपका माइनस में दिख रहा है, लेकिन हमें आइडेंटिटी में सारी चीज़ें प्लस में हैं, इसलिए सबको किस में कन्वर्ट करना है? प्लस में कन्वर्ट कर लेना है. सो राइट इट एज 2x प्लस माइनस साइन को आप y के साथ ले लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस y एंड प्लस z होल स्क्वायर. क्लियर? नाउ इफ वी कंपेयर दिस by x plus y plus z whole square, we got what? X is as 2x, y is as minus y and z is as z. Okay, now apply the identity. First of all आप ऐसे समझिए, जैसे ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर लिखा है तो आप इसको ऐसे समझिए कि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का होल स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकेंड प्लस 2 सेकेंड थर्ड प्लस 2 थर्ड फर्स्ट. क्लियर? नाउ दिस इज फर्स्ट 2x, दिस इज सेकेंड माइनस वाई, दिस इज थर्ड z. सो फर्स्ट स्क्वायर 2x स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट. नाउ सॉल्व दिस. 2x square will become 4x square. Square of minus is plus and y square is y square plus z square. This minus and plus will become minus. 2 to the 4xy. This minus and plus will become minus 2yz plus 2 to the 4zx and this is your final answer. Okay, now come to the fourth part. Fourth part is 3a minus 7b minus c whole square. फिर से वही चीज़, जो आइडेंटिटी है आपकी वहाँ हर जगह पे क्या है? प्लस है, तो दैट्स वाई पहले हम प्लस बनाएंगे. 3a प्लस माइनस साइन को हम 7b के साथ लेंगे, सो इट इज़ माइनस 7b प्लस
माइनस साइन को c के साथ लेंगे, सो इट इज माइनस c एंड देन होल स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस आइडेंटिटी x plus y plus z होल स्क्वायर मीन्स फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड होल स्क्वायर. फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड होल स्क्वायर इज व्हाट? फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकेंड प्लस 2 सेकेंड थर्ड प्लस 2 थर्ड फर्स्ट. So here we are going to expand this. Okay, we are going to expand this. First square 3a square, second square minus 7b square, third square minus c square, plus 2 into first 3a into second minus 7b, plus 2 into second minus 7b into third minus c, plus 2 into third minus c into first 3a. Solve it. Square of 3 is 9, then square of a is a square, plus square of minus is plus, square of 7 is 49, and square of b is b square. Square of minus is plus, then c square. This plus and minus will become minus. 2 3s are 6 and 6 7s are 42, a b. This minus and this minus will become plus, and this is already plus. So this is 2 7s are 14, b c, and this minus and plus will become minus, and 2 3s are 6, c a. So this is the final answer of your this part. Okay, now we are going to attempt one more part here, and that part is sixth part. Sixth part is what? 1 by 4a minus 1 by 2b plus 1 whole square. So according to the identity के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? पहले हमें उसे सबको प्लस में लिखना होता है. तो ये हो जाएगा हमारा x plus y plus z whole square is equals to this one. We are going to use this identity. So first of all we have to write all thing in plus. This is 1 by 4a. This is right because this is positive. Now here we have to write plus. This minus will come with 1 by 2b. So in bracket you have to write minus 1 by 2b, and in last plus 1, and this is whole square. This is first, this is second, and this is third. First is 1 by 4a, second is minus 1 by 2b, and third is 1. By identity, first square plus second square plus third square plus 2 first second plus 2 second third plus 2 third first. Clear? Put the value in identity. First square plus second square plus third square plus 2 into first into second plus 2 into second into third plus 2 into third into first. Okay, now evaluate it. Square of 1 is 1 and square of 4 is 16 and square of a is a square. Square of minus is plus, square of 1 is 1, square of 2 is 4 and b square plus square of 1 is 1. This minus and this plus will become minus. वन थिंग, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा. एंड दूसरी चीज़ देखिए, 2 से ये 2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? लाइट का कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, इसलिए लाइट डिम हो जा रही है बार बार, बट आई नो वेरी वेल यू हैव टू, यू कैन मैनेज इट. ओके, 2 से ये 2 क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है. दिस इज 1 by 4 from here and then a and b. Okay, now this minus and plus will become minus. 2 से 2 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा.
only b is remaining, so you have to write here b. Now plus 2 ones are 2, and from 2 when you cancel this 4, how many times? 2 times, so it will become 1 by 2 and last is a. So this is your final answer. 1 by 16 a square plus 1 by 4 b square plus 1 minus 1 by 4 ab minus b plus 1 by 2 a. Okay, this is the final answer of your sixth part. Now we are going to discuss question number 5. Question number 5 is very important question, and in examination maybe you found the first or second part in 3 marks, because this is very important question. What is the question? Factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. This is the first part. And second part is what? 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz minus 8xz. You have to do these 2 parts. Because there are 2 parts, I am going to tell you one part, and it's obvious because root 2 is appearing in the second part, so I am going to tell you the second part. Okay, first part you have to do. Okay, now look here. Second part is 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz minus 8zx. This is looking like what? ये चीज़ किस तरीके का दिख रहा है? देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, ये चीज़ कुछ ऐसा दिख रहा है, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. ठीक है, इट मीन्स कि इसे हमें इस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये नहीं कि हमें लग गया कि इस तरीके का दिख रहा है तो हमने डायरेक्ट उठा के आंसर लिख दिया, अगर हमें आंसर याद है तो. नहीं, हमें उस तरीके के फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है, जैसे ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो फर्स्ट 3 टर्म्स होल स्क्वायर में कन्वर्ट हों, ये आपका पहला टारगेट है. अब देखिए कैसे कन्वर्ट होंगे. 2 किस नंबर का स्क्वायर होता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि रूट 2 का स्क्वायर होता है. 2 किस नंबर का स्क्वायर होता है? रूट 2 का. तो इस 2 को हम क्या लिख देंगे? रूट 2 स्क्वायर एंड साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का ही स्क्वायर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 आपका होता है रूट 2 का स्क्वायर. कैसे? 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. क्लियर? इसके बाद फिर ये जो दोनों 2 हैं ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये लास्ट में जो 2 बचा इसको आप लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2. तो ये हो गया तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर और ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर, तो ये कंबाइंड होके हो जाएगा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 का होल स्क्वायर. तो हमने 8 को लिख दिया 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, साथ में जेड स्क्वायर, और बाकी तीनों पार्ट्स को अभी एज इट इज़ रखा, उनमें कुछ भी हमने टच नहीं किया. ठीक, अब एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे. अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो फॉर्मूला प्लस का ही बनता है, सब जगह प्लस रहता है. लेकिन यहाँ पे हम जिस चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं वहाँ पे 2 जगह पे माइनस है. एक टर्म है एक्स वाई वाला जिसके साथ माइनस है, तो हमने एक्स वाई को लिख लिया साइड में, और एक टर्म है एक्स जेड वाला जिसमें कि माइनस है, तो इसलिए हमने एक्स जेड को साइड में लिख लिया. और हमने ये देखा कि दोनों में कॉमन क्या है?
देखिए एक एक्स वाई वाला माइनस में था तो हमने एक्स वाई लिखा, एक एक्स जेड वाला माइनस में था तो हमने एक्स जेड लिखा, और दोनों में कॉमन क्या है, एक्स। ठीक, तो इसका ये सेंस निकल रहा है कि जो एक्स वाला होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास √2² एक्स स्क्वायर को कंबाइंड करेंगे तो हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर, और यहाँ से सेंस निकला था कि x वाला क्या होगा, निगेटिव, तो इसलिए हमने x वाले के आगे ब्रैकेट में माइनस लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? साथ में y², और ये आपका है 2√2 का स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो दोनों जब कंबाइंड होंगे तो ये हो जाएगा 2√2 जेड का होल स्क्वायर। क्लियर? 2√2 जेड का होल स्क्वायर, देन प्लस, अब ये जितने भी पार्ट्स हैं लास्ट के तीनों, ये क्या होते हैं, 2xy 2yz 2zx, मतलब कि 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट होता है ये हमारा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास 2 इंटू फर्स्ट, मतलब कि -√2x इंटू सेकेंड y, प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। और जब आप इनको इवैल्यूएट करेंगे तो बड़े आराम से आपको यही मिलेंगे, कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी, आपको वापस यही मिल जाएगा। ठीक है, एक चाहिए तो आप करके देख लीजिए। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2 का √2 से मल्टीप्लाई 2√2 साथ में xy, तो ये एक प्रॉपर फॉर्म होता ही है। हमारा मेन टारगेट होता है फर्स्ट 3 को मेंटेन करना। अगर फर्स्ट 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला आ गया तो फिर उसके आगे क्या होता है, 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड फर्स्ट। और जब ये इस तरीके का पूरा अरेंज हो गया जिस फॉर्म में ये होता है, तो ब्रैकेट के अंदर इसका इवैल्यूएशन बनता है फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट है -2√2 प्लस सेकेंड है y प्लस थर्ड है 2√2 z का होल स्क्वायर। So this is the solution of your question number 5 second part. Okay, fluctuation of light is too much, that's why for the next question I will give the solution in our next video. I am stopping this video here. Remaining questions that I am not solved these in these video you have to do. Okay, wait for the next.